Hi guys, welcome to Citizen Mentors. My name is Ketan. I hope I am live now and you all can see me and hear me as well. So it's one of the most important video. I thought of doing this because this can help you to a lot of students out there. जो भी CAT 22 के लिए जा रहे हैं उनको भी help करेगा, and those who are actually gunning for ABC or probably let's say Blackie this time, it gives you a little idea कि एक B school में आपको क्या देखना चाहिए. By the way, so guys, if I'm live, if you all can hear me, see me, audio video एक बारी बता देना and we're good to go ahead. I was just going through the entire placement report. Also had a word with a couple of students at IIM Calcutta. So I'll give you a realistic perspective here. IIM Calcutta, why it's getting better and better year by year. थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे. We'll talk about the history. We'll talk about इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया. उसके बाद थोड़ा प्लेसमेंट में ध्यान देंगे. कौन कौन सी कंपनी आती है. एक्सक्लूसिवली अगर हम बात करेंगे जो A और B में नहीं आती है. And probably हम will also talk about कौन सी I'm doing good यार. Thank you so much. कौन सी प्रोफाइल्स है जो मेरे ख्याल से एक्सक्लूसिवली C में आते हैं बट A और B में वो मुझे नहीं दिखते हैं, राइट? So we'll start with that. ठीक है, it's a very important video यार. ये comparison करना मतलब ठीक है, it's a little tough job, but we'll try and understand, why C is doing much better. Okay, just to give you guys a little idea, इस बारी IIM Calcutta का जो average package है वो 34 lakhs तक गया है. That is highest of all the B schools in the country, right? तो वो एक चीज है because of which a lot of students are now gunning for Calcutta. A lot of students का यार पहला choice बन गया Calcutta. नहीं सर, कुछ तो बात होगी Calcutta में because of which उनकी प्लेसमेंट इतनी अच्छी खासी जा रही है, राइट? एंड इवन अगर हम प्रोफाइल वाइज देखेंगे तो कैलकाटा इज डूइंग रियली रियली गुड. सो 34 का उनका यार एवरेज है, 31 का उनका मीडियन है. मैं आपको कुछ स्टैट्स बताऊंगा. टॉप 5 परसेंटाइल, टॉप 10 परसेंटाइल का जो एवरेज है वो माइंड ब्लोइंग है लिटरली. लास्ट ईयर की बात अगर मैं करूं तो जो टॉप 5 परसेंटाइल बचे थे उसका अगर मैं एवरेज के बारे में बात करूं दैट वाज 63 lakhs. टॉप 5 परसेंटाइल बच्चों का एवरेज वाज 63 lakhs. दैट इज इनसेन. Now that is insane. ठीक है, fine. So let's get started with this. पहली बात, IIM Calcutta का जो इंस्टीट्यूट है ये B school है. It was established in year 1961 मेरे ख्याल से, and it was known as a school of statistics. That is the best way to know IIM Calcutta. And मेरे ख्याल से उसके बाद ये थोड़ा बहुत आगे जाके because of the stats and mathematics ये फाइनेंस की ओर थोड़ा अच्छा खासा चलने लगा. मेरे ख्याल से एक अनड्यू एडवांटेज मिल जाता है IIM Calcutta को जब आप बात करते हैं फाइनेंस के बारे में, because this institute was established as an institute known for statistics and all that. तो मेरे ख्याल से वहां पे कहीं ना कहीं उनको एक एडवांटेज मिलता है. That's number one. So established in 1961. Also they had a collaboration with MIT, the Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Math, right? तो ये चीजें बहुत मैटर करती है एक कॉलेज को एक थोड़ा हाइप देने के लिए, एक कॉलेज को एक थोड़ा सा एक पुश देने के लिए कि what you will be known for. इससे A and B are also known very well for consulting and marketing. बट मेरे ख्याल से एक अनड्यू एडवांटेज यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाता है कैलकाटा को जब हम बात करते हैं कि यार उसका एक पैडागॉजी जब स्टैट्स वगैरह के बारे में बात होती है. लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो, मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है इसको. दे आल्सो कॉल इट एज अ कैंपस ऑफ 7 lakes. बहुत सारे लेक्स है कैंपस वगैरह में. इट्स अ ब्यूटीफुल कैंपस. वी विल नॉट टॉक अ लॉट अबाउट कैंपस, बट या नॉट श्योर बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि नहीं होगा. This is around about 2 hours का ड्राइव फ्रॉम कैलकाटा का एयरपोर्ट. सो इट इज सिचुएटेड at a place called as Joka. तो बड़े प्यार को इसको जोका भी कहा जाता है. It is actually famous as a Joka campus, which is like it's a sweet thing to talk about. So रही कैंपस की बात, बहुत chilled out कैंपस है. इनका कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है. IIMC का कल्चर is really good. Yeah, students do hustle, मेहनत बहुत करते हैं बच्चे, but एक थोड़ा chilled out यहाँ पे नेचर आ ही जाता है बच्चों का, right? Yeah, those who have joined in right now, काइंडली मेक श्योर दैट आप लाइक करो वीडियो को, आप शेयर करो या फिर आप कमेंट करना चालू करो, बिकॉज ऑफ व्हिच इट हेल्प्स माय एल्गोरिथम टू काइंड ऑफ ट्रिगर. तो वो हेल्प करता है. सो काइंडली फोकस ऑन दैट. तो ये कैंपस सिचुएटेड एट जोका एंड दैट्स हाउ यू विल कीप ऑन लिसनिंग कैंपस ऑफ 7 lakes एंड जोका एंड ब्ला ब्ला ब्ला. कैंपस इज रियली ब्यूटीफुल, नो डाउट अबाउट इट. एंड नेचर बड़ा चिल्ड आउट है. हां, एकेडमिकली ज्यादा आपको माथा फोड़ी नहीं है. यू कैन टेक इट इजी. ऐसे IIM Ahmedabad is academically driven. It's very rigorous. तो कैलकाटा में थोड़ा सा आपको एक चिल्ड आउट लेवल मिल जाता है and students love that. थोड़ा पीस ऑफ माइंड भी आपका होता है. चलो guys, we will quickly talk about इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो लास्ट ईयर थोड़ा चेंज हुआ था. बट अगर हम बात करेंगे इसके ओपन कैटेगरी के बारे में, अगर आप देखो इसका जो एक ओवरऑल कट ऑफ है जो IIM Calcutta is asking for, that's Quants के लिए 75, DLR के लिए 80, verbally के लिए 80, greater than 80 by the way.
ओवरऑल दे आर आस्किंग फॉर 85। अगर आपका एक भी कट ऑफ अगर मिस हो जाता है then you will not be getting an admit or other you will not be called by IIM Calcutta। तो जो बच्चे CAT 22 के लिए जा रहे हैं, make it a point that आपको ये चीजें याद रहे that even if you miss one thing you will not be able to get into it। ओवरऑल बाकी अगर हम देखेंगे जो भी कैटेगरी के बच्चे हैं you gonna have a really good time because आपकी कट ऑफ बहुत कम है। so जितने भी बच्चे ये वीडियो बाद में देखेंगे right for your information guys it's going to be really good because मेरे ख्याल से 65 70 ये कोई भी ला सकता है। this is round about what है like 6-7 questions in each segment of CAT। it is that easy अगर आप कैटेगरी से आते हो तो right whatever category NC OBC EWS SC ST PWD जो भी कैटेगरी आपका ये एक आपका क्राइटेरिया है। नाउ कितने चांसेस है कि ये क्राइटेरिया चेंज हो सकता है यार? ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस कि ये क्राइटेरिया चेंज हो। मुझे लगता है मोर और लेस ये क्लोज बाय होगा, 100% ये ऐसा ही रहेगा इवन फॉर कैट 2022। तो यहाँ पे ज्यादा चेंजेस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। सो दैट्स वन थिंग अबाउट IIM Calcutta एज फार एज द सिलेक्शन क्राइटेरिया इज कंसर्न्ड। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे लास्ट ईयर यहाँ पे ग्रेजुएशन को इन लोगों ने 15 मार्क्स दिए थे यार। इकलौता ऐसा भी स्कूल था जो ग्रेजुएशन के लिए 15% अलॉट करता था, बट नाउ दे आर नॉट डूइंग दैट। लास्ट ईयर से उन्होंने वो निकाल दिया। नॉट श्योर हाउ गुड इट इज हाउ बैड इट इज, बट अगर आपका ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा है स्कोर तो शायद से आपके लिए डिसएडवांटेज होगा, मोस्टली जो कॉमर्स या फिर बीबीए वाले जो बच्चे होते हैं। बट यार अगर आपका स्कोर बहुत खराब है, जो हमारे इंजीनियर्स जनता जो है मैक्सिमम इंजीनियर बच्चों का ज्यादा स्कोर नहीं आ पाता ग्रेजुएशन में, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है राइट। तो इन्होंने ग्रेजुएशन का स्कोर हटा दिया लास्ट ईयर से। सो कैट स्कोर इज गोइंग टू बी 56%। तो जो मुझे बच्चे कहते थे ना ऑलवेज कि सर मेरा प्रोफाइल खराब है, मैं क्या करूं कैसे करूं, यार आपके लिए एक ही चीज है। अगर आप देखोगे आपका जो कैटेगरी जो क्राइटेरिया है आपका राइट, आपका कैट का जो स्कोर होगा 22 का भी अगर आप स्कोर पकड़ते हो उसका जो वेटेज होगा वो अराउंड अबाउट 56 से लेके 60% होगा। ये कम होके भी कितना होगा 50% होगा जितना IIM बैंगलोर का है। ज्यादा जाके भी 60 तक जाएगा, उससे कम 50 के नीचे और 60 के ऊपर ये नहीं जाएगा एज फार एज IIM Cal is concerned। तो जितने बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हमको कॉल आएगी क्या या फिर हम कन्वर्ट कर पाएंगे क्या, सो गाइस ये जो 5 चीजें आपके सामने रखी है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 22 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो या फिर अगर आप पहले प्रिपेयर कर रहे हो एंड अगर आपको लगा कि यार मेरे को कैलकाटा का कॉल ही नहीं आया अच्छा इतना परसेंटाइल लेने के बाद, बिकॉज़ आई डू हैव स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड अबव 99.80 अबव 99.90 बट कैल ने उनको कॉल नहीं दिया। maybe reason that they did not fit into this criteria, that is the reason, right? So class 10 के लिए you get round about 10%, right? Class 12 15, ये थोड़ा ज्यादा है मेरे ख्याल से। 12th में सब लोगों के थोड़े स्कोर गिर जाते हैं, बट ये थोड़ा उल्टा है मेरे ख्याल से। वो 15 होना चाहिए था 10th में और 10 होना चाहिए था 12th में। कमेंट करके बता देना if you agree। And there is a good weightage which is given to gender diversity factor। So this is what IIM Calcutta will be looking into। अगर आप do they have placement in sales and trading role, हम उसके बारे में बात करेंगे किशोर। मैं पहले एक बारी आपको ना एक क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे प्लेसमेंट के बारे में। मैं डिटेल में वहां पे आपको बता दूंगा। फाइन, लेट्स मूव इट। व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया बाय द वे? रादर 10th एंड 12th के बारे में अगर हम देखेंगे, मेरे ख्याल से अगर आपका 10 on 10 है CGPA, अगर 10th एंड 12th में ऐसे बच्चे हैं जिनका 10 on 10 आता है, you'll be getting rather if you are like 10 on 10 मतलब you'll be around about 95% मेरे ख्याल से in your 10 standard, you'll get more than 10 rather you'll get 10 on 10 marks। simple 80% के अगर आप ऊपर हो आपको 10 on 10 मिलेगा। 75 to 80 you'll get 8 marks। 75 to 75 6, ये वाले ब्रैकेट में मैक्सिमम बच्चे लोग will fall। बात करें 12th स्टैंडर्ड की, सो 80 के ऊपर अगर आप होगे तो आपको 15 मिलेगा। 75 to 80 will be around about 12। मेरे ख्याल से ये जो दो क्राइटेरिया है ना यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, एटलीस्ट 12th में यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं। ग्रेजुएशन में थोड़ा कम हो जाता है मेरे ख्याल से, ग्रेजुएशन में 60 से 70 के बीच में बहुत ज्यादा बच्चे आते हैं, तो वो थोड़ा चेंज हो जाता है मेरे ख्याल से। बट अगेन मुझे आज भी लगता है कि थोड़ा 10th में वेटेज ज्यादा दो, 12th में थोड़ा कम दो, बिकॉज़ 12th में पीपल डू एंजॉय देयर कॉलेज लाइफ। 11th में तो परसेंटेज एकदम डाउन हो जाते हैं, 12th में फिर भी हम संभल लेते हैं बट नॉट मैक्सिमम चलता। देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हु विल बी एबल टू डू वेरी वेल इन 12th स्टैंडर्ड, तो उनके लिए एडवांटेज है। तो यार लेकिन अगर मैं बात करूं, देखो सिंपल सी बात है, ए बी और सी, इवन फॉर दैट मैटर KIL, एकेडमिक्स से लोग बहुत ज्यादा देखते हैं राइट, तो वो जानना एक जरूरी चीज है। मूवी गेट, इसका फाइनल स्कोर क्या है? कैट 2021 30% का वेटेज है, जो पहले आपका 56 का था राइट, वो अभी आपका आ गया 30। मैं ये उसलिए बता रहा हूं, अगर आप 22 के कैट एस्पायरेंट हो तो आपको एक आइडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यार सेकंड राउंड में क्या होता है। देन कम्स योर पर्सनल इंटरव्यू। तो जितने भी बच्चों का पर्सनल इंटरव्यू अभी लाइंड अप है, अगर आपने कैट में अच्छा करा नहीं होगा, फिर भी आप ये देख सकते हो कि यार
you know what, you can still nail it. आप फिर भी कैलकटा को कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपने बाकायदा बाइज्जत अच्छा इंटरव्यू दिया, ठीक है, फाइन. Then let's talk about academic diversity for bachelors and non-engineers. I think this is a little smart move from IIM Calcutta. ये इनका जो क्राइटेरिया है ना, ये इनको थोड़ा एडवांटेज दे देता है, because when you talk about IIM Ahmedabad, जेंडर डाइवर्सिटी एंड एकेडमिक डाइवर्सिटी लेवल 1 में आ जाती है. बट IIM क्या करता है, वो बोलता है कि यू नो व्हाट, वी विल ओनली हैव जेंडर डाइवर्सिटी इन राउंड 1. तो जो लेट्स से जो फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे राउंड 1 में, हम उनको 4 मार्क्स देंगे. बट इन राउंड 2 दे प्ले वेरी स्मार्ट. राउंड 1 से जो नॉन इंजीनियर्स होते हैं उनको कुछ एडवांटेज नहीं होता, वो मेरिट पे आते हैं, उनको वहां पे एकेडमिक डाइवर्सिटी का मार्क्स नहीं मिलता. बट सेकंड राउंड में IIM Calcutta will give you marks for your diversity, which is nothing but your academic diversity, right? तो यहाँ पे मुझे लगता है ये बड़ा स्मार्ट मूव है जो IIMA पहले राउंड में ही दे देता है, इसलिए IIMA का थोड़ा कट ऑफ नीचे चले जाता है till 80, 81, 82 percentile also. ये चीज याद रखना. WorkX 8, I think IIM Calcutta बहुत ज्यादा, Bangalore and Calcutta are more into WorkX का स्कोर ज्यादा these guys offer, which is very good for working folks. इसलिए यार यहाँ पे वर्किंग वालों के एप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा आते हैं. एंड अगर मैं ओवरऑल एक कंपैरिजन करूं, जो फ्रेशर्स का नंबर है अहमदाबाद में वो ज्यादा है कंपेयर टू बैंगलोर एंड कैलकाटा. बी एंड सी आर मोर इनटू द वर्किंग वाला क्राउड. फेयर इनफ, ठीक है. लास्ट स्लाइड फॉर द ओनली इंफॉर्मेशन, देन वी गेट इनटू द मेन थिंग व्हिच इज नथिंग बट द प्लेसमेंट एंड द एक्चुअल थिंग दैट मेक्स IIM Calcutta better than A and B. Guys, bye now. Right, we have gone to like 50% of the session. Kindly hit like so we can reach out to maximum janta. Point number 6, which is तुम्हारे वर्किंग के मार्क्स. Lot of people ask me कि सर ज्यादा वर्किंग अच्छा होता है क्या? देखो यार आपके सामने है 48 months. अगर आपका 4 साल के ऊपर वर्किंग से बेटा आपको खाली 2 मार्क्स मिलेंगे. I think the best slab is this. ये बहुत प्यारा स्लैब होता है 31 से लेके 36. तो अगर आपका 2.5 साल के थोड़ा ऊपर, पौने 3 साल या 3 साल है डॉट, you get 8 on 8. So this is what you need to understand. तो अगर आप ज्यादा वर्किंग्स करते हो तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं है. Make it a point कि आप एटलीस्ट 3 साल तक रखो. My genuine advice to everybody, 3 साल का वर्किंग्स is more than enough. उसके ऊपर मत जाना. Now final thing, okay, last 10 minutes and we are done. The batch profile. इसकी बैच प्रोफाइल देखना बनता है मेरे ख्याल से, और A और B के क्लोज बाई है, ये तीनों का सेम ही आता है ABC का. Your maximum thing is dominated by engineers. तो कुछ ऐसा आप देखोगे नहीं यहाँ पे कि engineers कम है. Engineers मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत ज्यादा है. मैं इन दोनों को क्लब करूंगा 64%, 20%, that's around about 84. प्लस में इसको क्लब करूंगा, that's around about 87. हाँ, so 87% हम पकड़ सकते हैं. around about 85 to 87% बच्चे लोग हम पकड़ सकते हैं जो एक्चुअली इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड से आते हैं. ऊपर का जो 15% है वो हम पकड़ सकते हैं नॉन इंजीनियरिंग वाला. Whereas अगर मैं IIM Ahmedabad के बारे में बात करूं, 1/3 of IIM Ahmedabad is basically non-engineering. 1/3 of IIM Ahmedabad is basically non-engineering. Darshit and what if? Better give me some time. I'll have a look at your comments and then I will reply you. Even Kaushal Khatri for that matter. Give me some time. Let me just get done with this session and I'll respond to you in person. Don't worry. Fine. So 1/3 of IIM Ahmedabad is non-engineer, whereas Calcutta and Bangalore they are full of engineers. Male to female ratio देख लो यार, ये अगर आपको if this really matters to you देख लेना. Now let's go to the chart. Let's go to the chart. ठीक है, आज के कितने बच्चे हैं? I'm very sure this is not going to give you real happiness. You might be non-engineers might be a little disappointed. देखो यार 360 बच्चे तुम्हारे इंजीनियरिंग के हैं. कॉमर्स वाली जनता 58, still good number. Others 16, science 33, arts 13, right? So again यहाँ पे इतनी ज्यादा आपको डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी. जेंडर डाइवर्सिटी इज डिसेंट. एकेडमिक डाइवर्सिटी यहाँ पे ज्यादा नहीं मिलेगी बिकॉज 85 to 87% आर engineers. Now let's talk about इनका प्लेसमेंट. Okay, let's talk about इनका प्लेसमेंट. See earlier क्या होता था, IIM Calcutta used to never have any sort of a cluster. पहले ये लोग क्लस्टर वगैरह नहीं करते थे. क्लस्टर का जो फंडा है वो सिर्फ और सिर्फ IIM Ahmedabad फॉलो करता था. बट पिछले 2 साल से Calcutta is into cluster वाला placement. Calcutta is into cluster वाला. EWS percentile is more than general in ABC usually because EWS is not that rare. You did 98 plus if you are not from weird backgrounds. Grigory Rasputin. पहली बात तो यार, let's not call them weird, but that's a very much disrespectful for calling the non-engineers pretty weird. They are just like you and me. Even I am a non-engineer, so there is nothing weird with them. They are as smart as engineers or sometimes a little bit better than them. So let's not call them weird. That's number 1.
दे आर डिफरेंट, राइट, बिकॉज उनकी प्रोफाइल अलग होती है। बिकॉज एसआरसीसी वगैरह के बच्चे देखोगे, सिम्बी वगैरह के बच्चे, जय हिंद वगैरह के बच्चे देखोगे, फाड़ बच्चे होते हैं, राइट। तो जैसे वहां पे आईआईटी बॉम्बे है, यहाँ पे हमारा एसआरसीसी है, सो let's not call them weird, right? This does not look good, right? Fine. So AWS का cutoff and for that matter OBC का cutoff is also close by. So AWS हो, OBC हो, तुम्हारा open हो, मुझे लगता नहीं इनमें ज्यादा bifurcation, ज्यादा variation आता है, close by तुम्हारे cutoffs आ जाते हैं। But अगर आपकी प्रोफाइल बेटर होगी तो मेरे ख्याल से yeah, you definitely from a weird background. There's no doubt about it, man. Right? You are definitely right. So anyway, moving ahead. ये क्लस्टर वाला फंड मैंने चालू करा है and I'm a big fan of this cluster. This gives you an opportunity to actually sit for the placement that you would love to get into, right? Industry wise. So number one is always and always for the IIMA, the top notch cluster, where I belong, basically investment banks. तो यहाँ पे एक चीज आप देख लेना, इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड मार्केट्स ये थोड़ा अलग होता है। तो जिन लोगों ने यहाँ कौशल एसआरसीसी रिस्पेक्ट सो अगर आप यहाँ पे देखोगे इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड मार्केट्स इन दोनों को अलग से लिखा है। ये आपको अहमदाबाद में भी दिखेगा, ये आपको बैंगलोर में भी दिखेगा और कैल्क में भी दिखेगा, बट ये प्रोबेबली आपको KIL में नहीं दिख सकता। देयर इज अ रीजन फॉर इट। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज जब मैं बात करता हूं इन्वेस्टमेंट बैंक्स के बारे में, आई हैव लॉट ऑफ प्रोफाइल्स हियर। आई हैव गॉट प्रोडक्ट कंट्रोल, आई हैव गॉट वैल्यूएशन, आई हैव गॉट M&A, आई हैव गॉट IPO, आई probably got a consulting role which is in-house role of foreign investment banks, right? दूसरी चीज ये है, ये जो मार्केट्स वाला जो सीन है ना, ये मार्केट्स इज प्रिडोमिनेटली ट्रेडिंग। सो लॉट ऑफ पीपल कीप ऑन आस्किंग मी, सर ये ट्रेडिंग का रोल हमें दिखता नहीं है, ये ट्रेडिंग का फंडा क्या है, हमें नहीं पता चलता, राइट? तो जहां तक ट्रेडिंग का सवाल है यहाँ पे, तो ट्रेडिंग इज कॉल्ड एज मार्केट्स, सो इट कैन बी एनी ट्रेडिंग। तो अगर हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट बैंक्स के बारे में, एक होता है फ्लो ट्रेडिंग। फ्लो ट्रेडिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, दे प्ले इन इक्विटी, बाय सेल बाय सेल बाय सेल, नॉट नेसेसरली इंट्राडे, अगर मैं इंडियन लैंग्वेज में बात करूं तो, बट द वॉल्यूम इज ह्यूज। यू माइट हैव सीन दोस मूवीज, राइट? जहाँ पे people are putting in the order, they are like going bonkers on each other, they are going aggressive on each other. So that's I mean, anyway, I will not be talking a lot. But yeah, that's kind of thing is basically a flow trading, which is huge volume. Then comes something to do with the structured products, which is nothing but the derivative, right? When I was in what? So derivative में क्या होता है ना, life is sort of easy, not really, but then you don't have that hush buzz, that noisy sort of a culture. Derivative is very complicated. We call it as a structured product in investment banks. By the way, investment banks में आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि यार इसको derivative में, no, they call it as structured products. And sometimes अगर आप देखोगे your structured products like round about 40-45 products है वहाँ पे। अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट के बारे में बात करूं, जो इंडिया में नहीं है, इंडिया में तो मैं एक्सपर्ट भी मत करना, इंडिया में कहने के लिए कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक है, SBI कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट बैंक है, ICICI का एक छोटा सा विंग है जहां पे IB का काम होता है, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली IB, दैट इज सॉर्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट का वैल्यूएशन, या फिर एक छोटे लेवल पे वो करते हैं, फिर डेट रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह वो करते हैं। इवन कोटक में डेट रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह होता है, बट मैं बैचमेंट्स देयर। बट जब मार्केट्स के बारे में बात करते हैं, it's purely your trading, right? So you've got a equity trading, you've got a structured products which is like OTC wala, you've also got derivatives which are traded in the market. So बहुत टाइप की यहाँ पे चीजें होती है, तो इसको कहते हैं मार्केट्स। So you will be actually working for these big clients, which is like belong to US and UK market and Singapore market. Now these are the profiles which is very very cut. ये प्रोफाइल्स अगर आपको चाहिए तो यार you definitely need to be from ABC, because ये इतने जल्दी KIL के लिए नहीं जाते। यहाँ पे कौन से लोग, कौन सी कंपनीज यहाँ पे आते हैं? You've got Deutsche, you've got Morgan, you've got JPMC, you've got Goldman Sachs. इस बारी IIM Calcutta में Lincoln International आया था, which is an exclusive. Lincoln International is basically a global investment bank. It came on the campus. It's a very exclusive role, which is only and only offered by Lincoln International to IIM Calcutta. They did not go to IIM Ahmedabad and Bangalore. This is what I got to know from my sources. तो ये जो एक exclusive roles होते हैं ना, वो कैल में आना चालू हो चुका है। Also, PE और VC के रोल्स कैल में थोड़े ज्यादा होते हैं compared to Ahmedabad and Bangalore. और जहां तक अगर हम बात करेंगे, इंडिया में are there good PE firms? To be very honest, अगर मैं बात करूं PE firms के बारे में इंडिया में, and if I have to be brutally honest with you guys, no, FMS में फाइनेंस आपको इतना सही नहीं मिलेगा। I can bet my life FMS में you will be disappointed अगर आप फाइनेंस लेते हो। Trust me, आप जाके FMS के बच्चों से बात करो, you will be little disappointed अगर आप फाइनेंस लेते हो। इतनी तोड़फोड़ प्रोफाइल नहीं आती है। Rather FMS से अच्छी प्रोफाइल IIM लखनऊ में आती है फाइनेंस के लिए। उसके बारे में भी बात करेंगे, आगे चलेंगे। कुशाल ने यहाँ पे मुझे पूछा है
कुछ प्राइवेट इक्विटी अच्छे कंपनीज है क्या इंडिया में? यार इंडिया में ना बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक, बुटीक पी फर्म्स बहुत ज्यादा है, जहां पे वो एंजल इन्वेस्टर्स या फिर एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई यार, जिनके पास राउंड अबाउट जैसे 100-150 करोड़ वगैरह होते हैं, वो लोगों को ये लोग मैनेज करते हैं. So you can't really call it as the actual PE, but actual PE, the cult culture is definitely coming from US and the European market. तो वहां पे वो ज्यादा है. So यहाँ से आप वहां पे जा सकते हो. I can get into the depth of it, but let me see what time I have. Otherwise मैं आपको पूरा यहाँ पे बता देता. आगे चलेंगे मैनेजमेंट कंसल्टिंग. तो जैसे मैंने कहा कि कंसल्ट का जो रोल होता है वो आपका इन हाउस भी होता है. सेकंड इज गोना बी कॉन्ग्लोमरेट्स. तो ये कॉन्ग्लोमरेट्स आते हैं आपके रिलायंस हो गया, आदित्य बिरला हो गया, टास्क वगैरह हो गया, ये लोग आते हैं. एफएमसीजी इज देयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इज देयर. एंड क्लस्टर 3 में आपका आता है बीएफएसआई, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, जहां पे यू कैन हैव द कमर्शियल बैंक्स, यू कैन हैव एनबीएफसीज, यू कैन हैव सर्टेन कंपनीज लाइक रेलिगेयर, you can have Motilal Oswal, you can have Axis Bank or something like that. Corporate banking आती है, wholesale banking की प्रोफाइल आती है, wealth management की प्रोफाइल्स वगैरह आती है, right? Markets and IB written in FMS placement reports are 1 or 2 profiles, not on a bulk level, not on a bulk level. 1 or 2 profiles are given in FMS, no doubt, but not on a bulk level. Okay, fine. So this is what you will see as far as cluster A 1, 2, 3 अगर पकड़ लोगे तो. अरे cluster 1 में क्या आता है? Kearney, McKinsey, these are the your sort of consulting वाले लोग. Accenture, one of the top recruiter in IIM Calcutta, bulk में आते हैं. D-Shop, hedge fund मेरे ख्याल से. CS again, markets. Avendus again, financial consulting, जहाँ तक मैं जानता हूँ इनको, right? So this is cluster 1. Cluster 2 में guys, EXL, Tata Consultancy, Adobe, Hindustan Lever. Again, Hindustan Lever is one of the major recruiter. ITC, L'Oreal, Nestle, Procter & Gamble, all good companies. Sector 3 में आएगा आपका भाई जो मैंने कहा ICICI Bank, Yes Bank, Mahindra, ITS, New Age Industries, so and so forth. But this looks really good. Now comes your Bangalore for finance, decent division, not a problem. Now come final placement for IIM Calcutta. यार इनकी highest package is 34.20 lakhs. This is incredibly high. This is incredibly high. Last year this was 29 lakhs. Now they jumped to 34. That's around about 25 to 30% of weightage or other kind of a jump in your average placement. So that's a good number. And अगर आप देखेंगे ना overall, this is really amazing because यार पिछले 17, 18, 19, 20, 21 5 साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे 20 लाख से ये चल रहा है, 29 तक आया, 29 से 34 गया, प्रॉब्ली 22 में अगर हम देखते हैं, 23 में अगर हम देखते हैं, आई वुड बी सरप्राइज अगर ये 38, 39 पहुंचा तो यार कंपनीज है, प्लेसमेंट्स है मार्केट में, प्रोवाइडेड यार आप एक अच्छे बी स्कूल में जाते हो. Okay sir, so can I consider that I can get an opportunity for sales and trading in FMS? Yes Kunal, yes Kishore, you can indeed if you are the best in the batch. If you are really good in the batch, you will be getting it. You will be there, nobody can stop you, right? So अगर आप एक overall देखेंगे इसका overall performance is amazingly good. Now let's talk about the actual placement a little bit in detailed manner, right? कितने ऑफर्स बने थे यार यहाँ पे, ये सबसे बड़ी चीज है जो बाकी किसी भी स्कूल में नहीं होती है. तो जो भी आपको एक एक्सक्लूसिविटी चाहिए ना, आप यहाँ पे वो एक्सक्लूसिविटी देख सकते हो. 631 ऑफर्स आए हैं 400 से 465 बच्चों के लिए. ये अहमदाबाद और बैंगलोर से ज्यादा है, अहमदाबाद और बैंगलोर से ज्यादा है. और 631 और 465 जो था ये इनका लार्जेस्ट नंबर था अभी तक का बच्चों का. 465 इज अ बिग नंबर यार, एंड फिर भी तुमने मैनेज करा कि भाई एवरेज तुमने 34 निकाला, राइट? एवरेज सैलरी इंक्रीज बाय 18%, 34.2, last year 29, that's okay. Median salary is around about 31 lakhs. तो अगर हम एवरेज भी इग्नोर करते हैं, median is around about 31. Last year it was around about 27. It's a great number. Number of recruiters, last year इनके पास 172 recruiters आते थे, मतलब कंपनीज आती थी. इस बार they have 190 companies. Again, the increment of 18 is a bomb number. It's 10% increment is a really good number. And there are certain companies, like JP Morgan Chase. JP Morgan Chase ने सबसे highest package दिया है. I have not been getting the information about it, but I'm very sure it has to be above 80-90 lakhs, whatever. I'm not sure if it's going to go or cross 1 CR plus. But ये चीजें आप देख सकते हो कि definitely यार JPMC is the highest pay package this year. So JPM, even I was surprised कि JPMC इतना पे करने लगा, because JPMC is not known for deep pockets. इतना ज़्यादा पे नहीं करता है JPMC. But yeah, might be they have changed their strategies, right? 49% batch got placed in consulting domain. I don't know why, but somehow
this year Calcutta का consulting का placement is really amazing. अगर मैं यहाँ पे बता दूँ यार 49% batch. Imagine out of these 465 kids, you have round about 230-240 बच्चे लोग getting placed in consulting. So consulting के लिए बहुत ज्यादा रोल है. अब यहाँ पे एक बात करेंगे, कंसल्ट का मतलब खाली कंसल्टिंग विद एमबीबी नहीं होता. यू हैव एमबीबी में भी बच्चे जाते हैं wherein you have finance का roles. So it might be financial consulting, or it might be e-commerce consulting, it might be startup consulting, right? You have Accenture business management consulting. उसमें आपको start to end हर चीज देखनी पड़ती है. This is called as abstract, which is Accenture strategy, right? तो यार वहां पे आपको IT कंसल्टिंग भी आती है. तो जब मैं कंसल्ट के बारे में बात करता हूँ, ये जो डोमेन है यहाँ पे, सी कंसल्टिंग इज नॉट अ स्पेशलाइजेशन. जो भी बच्चा आएगा वो मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, एचआर वगैरह या फिर जेनमैन करके आएगा या फिर स्ट्रैटेजी करके आएगा. तो ये चंक आपको बहुत ज्यादा दिखता है बिकॉज इस तरीके से इन्होंने ये दिखाया है, इस तरीके से इन्होंने इसको सेग्रीगेट करा है. बट द नंबर्स आर क्वाइट इंप्रेसिव. फाइनेंस एंड कंसल्टिंग टुगेदर हैव 67% शेयर. That is the bomb number. 2/3 batch is getting placed in consult and finance. See, there are certain things that are indeed in favor of Calcutta. So even like if you go and talk to, let's say, IIMC professor, like when we were on the campus, we would talk about, sir, why IIM Calcutta has been given such a hype as far as finance is concerned. Why IIM Calcutta is it really better than Ahmedabad as far as finance is concerned? But obviously, faculties will not indulge themselves in doing the comparison because they do their own job. उनका काम है पढ़ाना, एक टॉप नॉच का नॉलेज शेयर करना, वो लोग वो करते हैं यार. But there is no right or wrong answer as such that why Cal. Yes, there are a couple of companies like मेरे का वो Lincoln International हो गया, JPMC हो गया. कुछ कंपनीज सिर्फ कैलकाटा विजिट करेंगे बिकॉज वो एक ब्रांड, एक गुडविल ऑलरेडी बन चुका है मार्केट में जो उनको हेल्प करता है. And that is the reason there is a little advantage being in IIM Calcutta if you really want to get into finance or consulting domain. Accenture, BCG, E&Y, HUL, Bain and Company, ये टॉप रिक्रूटर्स थे. टॉप रिक्रूटर का मतलब ये नहीं होता कि इन्होंने ज्यादा पैसे दिए हैं, ज्यादा पे पैकेजेस दिए हैं. इन लोगों ने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेके गए हैं, तो नंबर्स यहाँ पे ज्यादा है. अब बीसीसी वगैरह would pick up around about 15-20 folks also, right? Accenture भर के लेता है. Accenture में अगर बताऊं around about 30-40 बच्चों को लेके जाता है. So it's a bulk recruiter in Blackie, which is Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Kozhikode, Lucknow, and Indore. 67% justifies the average salary. Yeah, Kaushal, definitely, yeah, definitely it does. Now I'm going to show you something which is really impressive, and you might get awestruck. Just look at this number, guys. Top 5 percentile average CTC is 63.7 lakhs. The top 5 percentile बच्चे हैं performance wise, right? They're or you talk about placement wise, 63.7 lakhs. That's a bloody amazing number. Comment करके बता देना, हाँ? Comment करके बता देना, right? So even if I don't talk about top 5 percentile, even if you talk about, let's say, top 50 percentile, your average is 36.6 lakh, which is anytime more than any other business school out there. Now, ये जो packages के जो numbers है, this is actually making IIM Calcutta a super duper B school of choice, where a lot of people really want to go. I have seen last year जब 2021 का 20 का जब CAT हुआ था, 21 का जब सीजन चालू होने वाला था, बहुत सारे बच्चे ने A छोड़ा, B छोड़ा और वो कैल में गए. कल्चर अच्छा है, चिल्ड आउट है, कंपनीज अच्छी है, एकेडमिक रिगर नहीं है, ब्रांड बहुत बड़ा है, एवरेज पैकेज हर साल बढ़ रहे हैं, फाइनेंस और कंसल्टेंट के लिए अमेजिंग बी स्कूल है, राइट? तो ये चेंजेस दिख रहे हैं. टॉप 10 परसेंटाइल का एवरेज पैकेज इज 54 lakhs, टॉप 15 परसेंटाइल का एवरेज पैकेज इज 48.7 lakhs, एंड टॉप 75 परसेंटाइल का एवरेज पैकेज इज अराउंड are not in dreams. These numbers are actually really impressive. IIM Ahmedabad से मन हट रहा है थोड़ा. अरे ऐसा नहीं होता. IIM Ahmedabad की अपनी अलग स्वैग है. IIM Ahmedabad की IIMA का एक अलग रुतबा है, कह सकते हो. उसकी लेवल थोड़ी अलग है. इवन बैंगलोर इज वेरी डिफरेंट. हाँ, मैं मानता हूँ पैकेज में कैलकाटा ने ए और बी को बीट करा है, नो डाउट अबाउट इट. बट बी मुझे लगता है थोड़ा बीच में रह जाता है. ए बाजी मार लेता है बिकॉज इट्स अहमदाबाद. तो जब आप एक IIM से होते हो, आप कहते हो कि आई एम फ्रॉम IIM,
बट जब आप IIM अहमदाबाद से होते हो, आप जाके कहते लोगों को आई एम फ्रॉम IIM अहमदाबाद, सो यू स्ट्रेस ऑन दैट वन पर्टिकुलर पॉइंट व्हिच इज अहमदाबाद. सो अहमदाबाद की भी अपनी यार अलग लेवल पे उनकी भी एक पेडागॉजी है. इतना मैं दिल से कह सकता हूँ कि भले नंबर में, प्रोफाइल में, स्टैटिस्टिक्स में कैलकटा हैज एन अपर हैंड विद रिस्पेक्ट टू A and B. पर जहां तक गुडविल है ना, जहां तक वो एक रेपुटेशन है, वो एक ब्रांड वैल्यू है जो अगले 50 साल तक चलेगी, उधर IIM अहमदाबाद तो डेफिनेटली टॉप लेवल पे रहेगा, राइट. ये हाई गौरव, ये देखो भाई 99.99% आया गौरव गोयल. सी ने बस 8 मिनट का इंटरव्यू लिया, कोई साइन नहीं, ऐसा कुछ नहीं गौरव. I think I've seen your message. I'll get on a call. Probably I'll get on a call with you tomorrow. ठीक है. So 9.99 बंदे को कैल का कॉल आया था. So congrats for that. ऐसा कुछ नहीं है, 8 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, जज करने वाला 5 मिनट भी जज कर लेता है, जज करने वाला 20 मिनट में भी जज नहीं कर पाता है अगर नहीं करना हो तो इट्स वेरी सब्जेक्टिव. ठीक है. सुनिधि सिंह, आपकी स्टोरी सुननी है? हाँ भाई, बताएंगे. We'll have it in a videos upcoming, so don't worry about it. So guys, I hope B का intrinsic value, B का intrinsic value define करना बहुत गलत बात है. पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं बोल नहीं सकता किसी भी B स्कूल की intrinsic value. It's very subjective, right? तो बच्चों से बात करके मैं बोल सकता हूँ, but yeah, again, not going to be a really good sign. ठीक है. Sir, really sorry, off topic. I'll be 25 in April and my best calls these are IIMT Ghaziabad. I'm working 16 months. This was my first attempt. I'll be 26 the next year. Should I try? You can try. Age is just a number. Matter नहीं करता है उम्र वगैरह. What matters is that even when you get around about 26, 27, you get into good B school. ठीक है. Before I finish, I'll just tell you something. आप 24 या 25 years के हो, आप IIMT गाजियाबाद जाओ, आप 20 लाख से चालू करो, आपने 1 साल और देना है अपनी लाइफ का, और आप ब्लैक में चले जाओ. भाई एक्चुअल में 1 साल आपका, आप बोल सकते हो कि मैंने 1 साल इन्वेस्ट किया मेरे कैट की प्रेट में, पर अगर आप ब्लैक जाते हो और IIMT गाजियाबाद जाते हो, आपके करियर के लिए आप 1 साल पीछे हो बिकॉज आपने 1 साल का गैप लिया, बट आप अपने करियर में 5 से 6 साल आगे हो बिकॉज वो जो ब्रांड है वो आपको इतना पुश करता है लाइफ में कि यार देन देयर इज नो यू टर्न, राइट. तो मैं ऑलवेज कहता हूँ एज इज जस्ट अ नंबर. बिल्कुल भी अपने उम्र को और अपने MBA डिग्री को कंपेयर कभी मत करना. बिंदास घुस जाओ, बिंदास करो, गो फॉर अ किल, गेट इनटू टॉप नॉच बीच. ओके, cool. Fine guys, I hope ये सेशन आपको हेल्प करा. If you're somebody who's preparing for 2022, ये चीज याद रखना. If you're somebody who did not do very well in 21 and want to go the ladder up, थोड़ा बहुत और मेहनत करनी है, maybe these numbers, these figures can actually motivate you. So guys, that's it from my side. Thank you so very much for joining in. And if you're new to my channel, kindly subscribe and click that bell icon. ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे अभी, because now I will be थोड़ा सा एक्टिव. हर रात एक आध लाइव सेशन करने की कोशिश करेंगे. विजय ठीक है. एनीवे विजय, with you as I want to get into fan. Vijay, do me a favor, drop me a text right now. We'll have a one-to-one call tomorrow. ठीक है, about finance. Guys, that's it from my side. Take care. Have a beautiful night. Bye bye. Bye bye guys. Bye.